Starting with an enriching education session by our expert hairstylist, today we are thrilled to introduce Spectrum, the new cut, color, and style collection for 2024 by Streaks Professional. In this session, you will get an exclusive insight into the latest techniques in cut, color, and style. Additionally, we have some exciting new launches that we are eager to share with you. Streaks Professional has always been a pioneer in the hair industry, renowned for pushing the boundaries of style and creativity. Our commitment to quality and excellence has set us apart, and today is a testament to the dedication. Without further ado, I would like to call upon the head of technical, Hina Dalvi, to take us through this exciting journey. Thank you and enjoy the session. Can we have Hina Dalvi on the stage, please? Is my mic working? Can everybody hear me? Okay, so good afternoon, namaste, namaste Delhi. I think Delhi दिल वालों की है और ये हम सब जानते हैं. आज मैं हूँ हीना दलवी और मैं टेक्निकल हेड हूँ जो स्ट्रीक्स प्रोफेशनल में एजुकेशन के लिए काम करती हूँ. आज हम यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा फन, थोड़े हमारे कुछ लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे. बट अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली हमारा कलेक्शन जो है स्पेक्ट्रम, हम स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करेंगे. अनवील करने के लिए आप देख रहे हो कुछ हमारे पास दुल्हन जैसे ढके हुए पीसेस है और हम इसको अनवील करने वाले हैं. टू अनवील द पीसेस एंड आवर न्यू लॉन्चेस, आई एम गोइंग टू वेलकम ऑन स्टेज नेहा भट्टाचार्य. She is the general manager and head of marketing for Streaks Professional. Along with Neha Bhattacharya, I would like to call on stage Mr. Pramendra Srivastav. He is the national sales head for Streaks Professional. Pramendra Srivastav, national sales head for Streaks Professional. Neha Bhattacharya, general manager and marketing head for Streaks Professional. And the business head, Rizwan Ahmed. I want everybody to unveil together. Rizwan Ahmed, the life, the heart of Streaks Professional. I would request the three of you to please unveil the new launches. We have our new launches. The Yellow Deleted, which is a purple shampoo. We have Funky Color Yellow and Funky Color Orange. And we have a new range of Argan Secrets High Lift, which is basically up to 4 to 5 levels of lift with directly 40 volume. यही सब मिला के, यही सब प्रोडक्ट्स यूज करके आज हम हमारा कलेक्शन और कुछ लुक्स आपको दिखाने वाले हैं. थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू. थैंक यू. बता दो, पीछे ले रहे हो ना इसको? हाँ. With me today, आज मेरे साथ कुछ और आर्टिस्ट है जो मेरे साथ आज काम करेंगे ऑन स्टेज. हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम ही 10-15 मिनट है ईच डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू शो यू वेरी क्विक टेक्निक्स ऑफ कट्स, स्टाइलिंग, so that we know it will help you also. I would like to call on stage with me Mamta Suvarna, who is the Zonal Technical Manager for West and South. Can I have Mamta Suvarna on stage, please? I think इतना शोर हो रहा है कि माइक की आवाज भी पीछे तक नहीं जा रही है. मेरा नाम जब 2 बार अनाउंस हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बुलाया जा रहा था. Can I have Mamta Suvarna on stage? Zonal Technical Manager for West and South. Mamta, along with her model, Ashish, is going to demonstrate a haircut, which is actually done a lot on ladies, but ये शायद पहली बार हम gents पे करेंगे. So that's what Mamta is going to do. Bring the chair in the forward if you want. And I'm also going to do a very quick haircut on my model Priyanka. इतना सामने, इतना सामने नहीं. Priyanka, can I have you on stage, please?
हमने ऑलरेडी कलर कर चुके हैं बिकॉज ऑन स्टेज लाइव कलरिंग हो नहीं पाती पॉसिबल. तो मेरी मॉडल है प्रियंका, जिनके ऊपर मैंने हमारा नया लॉन्च जो है कलर का विच इज जेस्टी येलो, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. And this is the hair on which I am going to do a haircut. My haircut is a dry haircut because जब मेरे पास टाइम ही 10 मिनट है और उसके बाद मुझे स्टाइलिंग भी करना है बैक स्टेज इनका, तो I want to do something where clients come in. We want to do something quick and fast and get done with it without changing the length. Again, she was very this that I want my length to be maintained. So we are going to maintain the length of the hair. Over to you, Mamta. Yeah. Hi guys, my name is Mamta. I'm also known as Trisha. People know me by Trisha in this industry as well. Okay, आप देख सकते हो जो मेरे मॉडल है आशीष, उनका हाफ हेड हेयर कट मैंने किया है. ये हेयर कट का नाम है वुल्फ कट अंडर कट. ओके, सो वुल्फ हेयर कट जो है हमने बहुत इंस्टाग्राम में देखा है विद लेडीज, तो फर्स्ट टाइम इट इज विद मेंस. ओके, तो हाफ अगर आप देख सकते हो उसकी जो टेक्सचर क्रिएट हुए हैं. Okay, so it's like a it's very sleek. If you see this kind is a straight hair, तो यहाँ पे काफी texture create करना है और वो sharpness देना है. Okay, my model has got a very good jawline, तो उसको और enhance करना है मुझे. One more thing, you can see the color. So color is, we have pre-lightened it with Ultralight 7 of Streaks Professional. Okay, we have reached till 9-10 level and deposited ash blonde. So जो ash blonde है Streaks Professional का new product launch है, high lifting shade है. Okay, so you can see a nice ash blonde color. And now I'm starting with the haircut. अभी half head हुआ है, so another side I'm doing it. Okay, Mamta, I'm just going to take over. तो मैं अपना हेयरकट ड्राई कर रही हूँ. ड्राई हेयरकट करने के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना है, जितना कम हो सके ब्लंट कट करना है. We are going to work a lot with point cutting. I'm also not going to work, I'm going to avoid working with a lot of parallel cutting. I'm going to try and work mostly with pivoting. तो मैं पीछे का पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ और मैं पिविटिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने सेंटर लिया है, मुझे अपना लेंथ मेंटेन करना है. तो ऑब्वियसली अगर लेंथ मेंटेन करना है, द बेस्ट थिंग इज टू ऑलवेज ओवर डायरेक्ट. व्हेन आई ओवर डायरेक्ट आई विल जस्ट लेट माय लेंथ गो. जो भी मेरा गाइड आएगा उसी से मैं एक्चुअली एक कॉनकेव कट करूंगी, मतलब इंटरनल सेक्शन शॉर्ट, एक्सटर्नल सेक्शन लॉन्ग. इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सेक्शनिंग. सो दिस इज हाउ इट विल लुक. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पॉइंट कट एंड नॉट जस्ट पॉइंट कट, डीप पॉइंट कट. व्हाई डीप पॉइंट कट? बिकॉज मुझे मूवमेंट चाहिए. मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ड्राई हेयर कट करने की वजह से कहीं पर भी बहुत ज्यादा डिमार्केशन लाइन बन जाए. दैट्स व्हाई डीप पॉइंट कट. ओवर टू यू ममता. so I'm starting with the, if you see I have created a horseshoe section. तो horseshoe section किया है, ऊपर मैंने isolate किया है. Okay, so वो length जो है it is this, but there is underneath one more length I have created which is an undercut. So वो मैं maintain करूँगी. So first I'm starting with the undercut. I'm taking sections towards the face. Okay, I'm doing a point cut to define the texture. Over to you, ma'am. Over to you, So Hina. I am just actually taking pivoting sections. जो गाइड था मेरा, गाइड को लेते हुए, बट आई एम लिटरली बहुत अच्छे से मैं उसको जो ओवर डायरेक्ट करने के बाद जो बाल छूट रहा है मैं छोड़ रही हूँ. बट मेरे पास यहाँ पर भी गाइड है और यहाँ पर भी गाइड है, बस मैं उस गाइड को अभी फॉलो कर रही हूँ. So what I'm doing is, while I'm doing layering to the hair, I don't want to make her hair look very, very fragile, very, very light. So I'm actually going to keep a very heavy layering. नीचे से लेयर करने के बाद ऊपर का सेक्शन मैं शायद डिस्कनेक्ट करके या शायद थोड़ा ग्रेजुएट करके कट करूंगी. Have I decided what I'm going to do on this hair? Actually no. I'm just going with the flow of how the hair is going to sit. ये सेक्शन होगा, फिर मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे उसको कैसे मर्ज करना है. So I'm going individually. Yes, Mamta. So I have created a guideline here, okay, in the front, and I'm using a traveling guideline. Okay, so I'm taking parallel sections, taking it in the front, twisting it and doing a point cut. It is above the ear.
So you have to twist it and cut it. So once you comb it reverse, so it will give you this kind of look. Okay, you can see the sharpness, you can see the points. I'm actually doing a traveling guide, and I'm doing a traveling guide to my previous cut section. That means मैं ये guide लेके next section cut कर रही हूँ. अगर मैं स्टेशनरी करती तो मुझे बहुत हैवीनेस मिलता बालों में, और बालों में लेकिन फ्लो नहीं आता. थोड़ा सा जब मैं ये करती हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, आई एम गोइंग टू गेट अ लिटिल मोर मूवमेंट व्हाइल लेयरिंग. द ओनली थिंग इज मुझे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना ऐसे लगेगा कि जैसे ये बहुत ज्यादा बाल यहाँ पे कट गया है. या ममता? Yeah. So I'm just using the same guideline and traveling and creating the texture with the help of point cut, taking diagonal sections from ear to nape. Okay. So you have to just create a diagonal section. So diagonal forward section for me too. Just the main thing is over direction so that I don't lose my length. Now यहाँ पर जब आते हैं तो because एक curvature होता है, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा हेयर छोड़ने वाली हूँ. क्या वो मेरा बेस हिलाएगा? नहीं, बिकॉज मेरा वन लेंथ ऑलरेडी हो चुका है, तो वो मेरे वन लेंथ को चेंज नहीं करेगा. बट अलॉन्ग विद दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव मी अ लिटिल वॉल्यूम टू मेंटेन द लेंथ. So if you see the way it is cut, there is movement in the hair, there is softness. Shortest point being here, and traveling guide करने की वजह से जब हम इसको स्टाइल करेंगे, टोंग करेंगे या नेचुरल टेक्सचर में आएंगे, तभी हमें ज्यादा समझ में आएगा. Okay guys, it is very important to balance both the sides. So whenever you are in doubt, you always go a little longer. Okay, and then you can again go back and cut it short. So how many ladies do men's haircut? कितने ladies करते हैं men's haircut? Who all are passionate about? और कौन-कौन सीखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेडीज है तो मेंस हेयर कट नहीं कर सकते. Yeah. So we have Mamta who's doing a gents haircut right now. So yes, I'm very passionate about. I don't know why I feel attracted towards men's haircut, but it's really fun. So आप लोग भी try करते हो. घर पे अपने बच्चों के बाल तो काटते ही होंगे मम्मीज. हस्बैंड्स के बाल कौन कट करता है? कोई नहीं. मेरा हस्बैंड मेरे से हेयर कट नहीं कराता है, जितना भी मैं हेयर कट कर लूं. ही इज लाइक कि नहीं नहीं मैं बाहर चला जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक ये एक सोच है कि लेडीज जब जेंट्स का हेयर कट करती है तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता है. बट दैट्स नॉट द थिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस आई फील. So I'm just continuing doing my pivoting. हमने ये कलर जो किया है हमारा फंकी कलर का जेस्टी येलो, ये हमारा लेटेस्ट लॉन्च है. ये अभी अवेलेबल है फॉर सेल ऑल्सो. द थिंग इज ये लाइटनिंग का लेवल कितना जरूरी है फंकी कलर करने में, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर लाइटनिंग का अंडरटोन आपका सही नहीं होगा तो जो कलर आप करना चाह रहे हो वो कलर उतना दिखेगा नहीं. इनफैक्ट ये कलर करने के टाइम पे हमने जब प्री लाइटनिंग किया था, we have actually pre-lightened the hair to a yellow level, to a between yellow and pale yellow, ताकि हमारा येलो दिख जाए बालों में. बट जब भी हम जैसे ऐश करते हैं, जैसे त्रिशा की मॉडल पे है आशीष पे, तब हमको एक्चुअली इसको थोड़ा ज्यादा प्री लाइटनिंग करना पड़ता है ताकि वो ऐशी टोन दिखाई दे. त्रिशा, हैव यू यूज्ड द येलो डिलीटेड न्यू शैम्पू? Yes guys,
नया प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, येलो डिलीटेड शैम्पू, जैसे आप पर्पल शैम्पू बोलते हो. ओके, क्यों यूज करते हैं? ताकि जो भी आपका अनवांटेड अंडरटोन्स, भले कॉपर हो या येलो, उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है. सो न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कलर थ्योरी, एवरीबडी नोज. तो कॉपर नहीं दिखना है, तो मैंने भी मेरे मॉडल के लिए येलो डिलीटेड शैम्पू कर दिया. तो काफी कूल टोन हुआ. पहले से येलो तक गया, लेकिन फिर भी वो येलो था, बिकॉज येलो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर. सो येलो डिलीटेड शैम्पू हेल्प मी टू एलिमिनेट दैट yellowish tone. 10 minutes left. Yes. Guys, so we are 10 minutes over, Trisha. Yeah. I will take maybe 5 minutes more for doing my haircut. Okay. So I have finished. Okay, but final styling हम लोग walk में देखेंगे इनका. But I have to just do a top section quickly because I have just 5 minutes left. So Trisha, once you're done with your haircut, maybe you can go backstage, finish your styling. Yeah. मैं यहाँ से गाइड ले रही हूँ पीछे से मेरे फ्रंट को कनेक्ट करने के लिए. एंड आई एम एक्चुअली कटिंग नाउ अ कॉन्वेक्स. मतलब मेरा एक्सटर्नल लेयर अभी लॉन्ग होगा और इंटरनल लेयर शॉर्ट होगा, ताकि जब वो गिरेगा there is a disconnection between this layering and this, but because of that 1 point connection I will get a more bouncy fall over here, which is more like a graduation also. So just to create that graduation, I'm going to do this. So it is slightly disconnected, but still it has that one graduated effect, but it is a convex color cut. And यहाँ पर मैं try कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा scooping करते हुए करूँ, ताकि मेरे पास randomly रहे. So it is short to long again, which is a convex, but I still have that disconnection here, but connected in the center. I am taking a pivoting section again. Ideally wet ball होता तो मैं एक parallel section से भी काम कर लेती. ये section में मैं pivoting करूंगी, but I am going to over direct it to the center. That means I am going to work with a stationary guide. I have my guide over here which I have cut, and I am just going to merge everything. Sorry, ऐसे नहीं दिख रहा है. Okay, let me turn it around. I'm just. Risha, what you're doing? Can you? Yeah, guys, I have to just maintain the length. So उसको over direct कर रही हूँ मैं completely पीछे, and I'm matching the length with the other side of the hair. So the reason I was standing that side was so that I could see my guide. तो जब भी हम कटिंग करते हैं, जिस साइड गाइड होता है हमें उस साइड खड़े होना चाहिए. That is the reason I was standing there. But now to show you all, तो मुझे अपना गाइड नहीं दिख रहा था, so I'm going to stand here. I'm going to work on this guide of mine and just actually point cut everything on this guide. I don't want perfection when you're doing a dry haircut. You don't need perfection because it's still going to fall like a lob. ये पीछे एक lob की तरह अपने आप fall हो जाएगा. मैंने नीचे का बाल टाई करके रखा है ताकि मैं नीचे का बाल ना कट कर दूं by mistake. Again, I'm going to over direct everything to my stationary guide. Pivoting section, over direction to maintain length, and stationary guide. तो यहाँ पे मेरा guide है, and I'm just going to deep cut. Again, the remaining hair from the front. बस. The remaining hair from the front, I'm again going to over direct literally to the other side because I want my sides to be longer. Because when I style, it will be seen clearly. तो hardly मेरे पास कुछ कट करने के लिए बचा है. Sorry. My mic is a little loose, guys, so मेरे इस पे से गिर रहा है घड़ी. So when I style this hair, and because of the texture you can see, so it has a balayage effect of free lightning. When I style it maybe with a 28 or 32 number tong, it will just have a flowy texture to it. That's it. And this is the haircut which a lot of like Priyanka Chopras and all of these people usually wear, this kind of haircut.
because उनको वो textured look, beach look create करना होता है. So I'm going to very quickly complete this side, and as soon as Mamta will finish, I will call my Yes. next artist on stage. In a while. गाइस आपने सुना होगा स्किन में हम लोग को बहुत सुनने मिलता है अबाउट कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन प्रोडक्ट्स. ओके, एंड आजकल बिकॉज ऑफ BTS एंड एवरीथिंग कोरियन हेयर स्टाइल्स भी फेमस है. तो इन Because of कोरियन K-pop. Yeah, because of hip-hop. K-pop. So yes, so this is also one of the Korean hairstyle which is got ये 10 famous to in 15 Instagram. washes. 10 to 15 हम बोलते हैं, चलता ज्यादा है. तो ऑफिशियली हम बोलते हैं 10 to 15, बट ये एक्चुअली ज्यादा वॉशेस तक चलते हैं. I'm going to turn her around because I want to see my guide. So I have my guide here. आपको दिख रहा होगा ये point है. I'm just going to connect everything out. Yes. So yeah, we have got little less time. So no styling मैं on stage नहीं कर रही हूँ, backstage कर रही हूँ. So we are getting the model for the walk. The idea is basically कि हम जितना ज़्यादा आपको demonstration दे, ना कि सिर्फ हम दो, बल्कि styling का कुछ demonstration दे, इसलिए हम ये 2 haircut करके backstage styling करने वाले हैं. So again, I'm over directing. And just point cutting. Yes. So now that Trisha is done, I'm going to call on stage our next artist. She's one of the best educators in India. She's also someone who has worked with a lot of celebrities. Shirin Merchant, she's a world champion. Jitna participation and competition Shirin Merchant ne kiya India, the way she's as an educator, it's a really an inspiration. So please welcome on stage Shirin Merchant with her model for styling. Get the model. हेलो, कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया? ओके. सुबह से जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम श्योर शो के बाद शो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है. और ये एग्जीबिशंस का मतलब ही ये होता है कि हम साथ में इकट्ठे मिलके एग्जिबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. एज हम सलोन ओनर्स वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने आते हैं. सो इंटरैक्शन और इंटरचेंज ऑफ चीज़ें होती है, नॉलेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स. तो ये स्टेज पर, ये मंच पे हम आपको नॉलेज बांटने को आए हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर करने को आए हैं. ओके, सो आपने देखा होगा हम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड फंकी कलर्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं. एंड हिना, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फैब जॉब एज आई कैन सी. आजकल जो ट्रेंड चला है मोर ऑन द स्ट्रेटर लाइंस. एक टाइम था जब पूरे वन लेंस चल रहे थे, पर बहुत ज़्यादा वेट लाइन हुआ करता था ऑन दी एंड्स. ओके, सो मॉडर्नाइजेशन वही चीज़ का होते रहता है. तो अभी जैसे हिना मैम ने किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है पर उसमें टेक्सचर एंड मूवमेंट देना है. पहले हम क्या करते थे, टेक्सचर एंड मूवमेंट देने के लिए फ्लिप आउट लेयर्स देते थे, पर अभी फ्लिप आउट का जमाना नहीं है, अभी वन लेंथ का जमाना है. और उसी में इन डिस्कनेक्टेड लेयर्स देना है अंदर, इंटरनल व्हाट शी इज गिविंग. सो जस्ट टू एनहांस द मूवमेंट. आपने देखा मैं पहले स्ट्रेटनिंग करती थी, पर आज मैंने अपना हुलिया बदल दिया है, हेयर को ज्यादा रफल्ड बनाया है. ऑल्सो मानसून के सीजन में इस तरह के स्टाइल्स ईजी होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नेचुरल मूवमेंट है और सीधा ब्लो ड्राई करने जाओगे 10 मिनट में आपके बाल फ्रिजी हो जाएंगे. अग्रीड? यस. तो इससे बेटर है कि आप बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगा के बालों के नेचुरल मूवमेंट को वैसे ही छोड़ दे. ओके, सो ऑल आवर स्टाइल्स टुडे दैट यू ऑल विल बी सीइंग, वी विल हैव अ लवली रैंप वॉक ऑफ ऑल द मॉडल्स. और आप एक के बाद एक दंग रह जाओगे, इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स आप देखोगे, राइट फ्रॉम द कूल वायलेट्स to the bright reds, to the cooler reds, to the greens, to the yellow. You all are going to have an amazing time, and also you all are going to see Sondre colors. कैसे किया है जब हम स्टेज पे आएंगे आपको बताएंगे. अगर कोई क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर हमारे इंस्टा हैंडल्स, स्ट्रीक्स के इंस्टा हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हैं. हम आपको ज्यादा डिटेल्स देंगे. हमारे पेज को आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा. यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडल्स
आपको सामने दिखने वाले हैं in the next few minutes. So I would like to call upon my model. I'll be showing some styling. So what I'm doing is front, बाकी I'm के just सारी चीजें। merging visually. Instead of cutting it in space, I'm over directing everything, taking my guide from the back, and I'm just scoop ये सारे cutting pins निकाल everything के that इधर is रखो। extra. Instead of blunt cutting or point cutting anything, जो भी extra आ रहा है, just to Let's have start the with this. texture and flow. ये best haircut है when you want to do it on somebody with his wavy hair or curly hair, because automatically वो पूरा set हो जाएगा. In fact, the color placement अभी आपको दिख रहा होगा, हमने एक मनी पीस का color placement किया है with the yellow, and that is how it looks. So I'm just going to finish this part backstage so I don't stop the other artists from coming on stage. And the other artist on stage is our zonal technical manager, Mr. Jatin Kapoor. He looks after the north and east Shine region. spray. So Shine Jatin, spray. can we have you Shine on stage, please? और एक है इतना ही था Shine spray चाहिए। तो आज जो हम लोग स्टाइल करने वाले हैं, सो उनके ऊपर पहले बिफोर स्टाइल हम लोगों ने अपना ब्यूटीफुल कलेक्शन फ्रॉम फंकी Thick bones कलर, भी ले लो जो ग्लोरियस ग्रीन कलर जो हमने क्लाइंट के बालों में किया, और अभी हम लोग उनकी बालों में स्टाइल करने वाले हैं। सो हम लोग बहुत सारे वेव्स कर रहे हैं, और वेव के अंदर हम लोग एक नया एलिमेंट डालेंगे, दैट इज कॉर्नरोज. तो इट विल गिव यू द डिफरेंट एंड वेरी इंटरनेशनल लुक्स. सो आई विल रिक्वेस्ट माई मॉडल, just can I call Khushbu please? Before that, may I request the housekeeping to clean this? ओके तो आप देखोगे कि जो मेरी मॉडल है उसके बाल में एक अच्छा सा ब्राउन है। या तो मॉडल आजकल लोगों को क्या पसंद आता है, आपने देखा है एक अलग मार्केट है क्लाइंट्स के लिए जिनको बहुत ज्यादा लाइट कलर्स पसंद है, ब्लॉन्ड्स पसंद है। Housekeeping. ओके वो एक One minute, रेंज one होता है, minute. एक मार्केट है ओके जो वही पसंद करते हैं। Just do that. और कुछ जो रहते हैं वो ज्यादा सटिल कलर्स पसंद करते हैं, जो हाउसवाइफ्स है, जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। ओके ब्राउन के अंदर फ्रेंच ब्राउन हो सकता है, मतलब कूल ब्राउन जैसे कि हमारा 8.31 है। ओके और वार्म ब्राउन जो हमारा ये न्यूली इंट्रोड्यूस कलर है विच इज अ हनी ब्लॉन्ड। ओके ये काफी हाई लिफ्ट वाला है, 4 लेवल्स तक लिफ्ट, 4 to 5 लेवल्स लिफ्ट देता है बालों में। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में ऑन अ बेस 4 to 5 इस तरह का कलर अचीव कर सकते हैं। इनके बालों में भी हमने सिर्फ ग्लोबल एप्लीकेशन किया है, एंड यू कैन सी द कलर्स लुकिंग सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल। यस यस, तो अगर यस है तो क्या करना चाहिए? Clap. वेरी गुड। So this is our model Khushbu. So आप देख रहे हैं इनके बालों में हमने ग्लोरियस ग्रीन फ्रॉम आवर फंकी कलर कलेक्शन। सो इनके लिए हमने पहले प्री लिफ्ट किया अप टू 8 लेवल। 8 लेवल लिफ्टिंग और करने के इसके बाद हाथ में हमने रखो। वॉश करके डायरेक्ट कलर डिपॉजिट किया। ठीक है, दिस इज द ग्लोरियस ग्रीन कलर। और जो हमने इनके बालों में टोंग किया है दैट इज 22 नंबर टोंग। डायगोनल सेक्शन जस्ट ट्विस्टेड, जस्ट लीव इट, नो प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड। नाउ ऑन दिस साइड पार्ट देयर इज अ स्मॉल डायगोनल बैकवर्ड जो हम लोग कॉर्नरोज करेंगे। I'm using that, I'm leaving some small hair in the front and starting the cornrows. हम जब भी एस वेव करते हैं ना तो एस वेव का जो बम्पी पार्ट है वहां पे हमें पिंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कभी कभी हमारी पिनिंग टेक्निक भी सही नहीं रहती जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एलिवेशन नहीं आता जिस तरह से हमें चाहिए। सो किस तरह से हम पिंस को प्लेस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So अगर आप देखें खुशबू के बालों में हमने क्रिम किया है, बट जो क्रिम किया है वो हमने सिर्फ रूट्स में किया है, नॉट ऑन द एंटायर हेयर, जस्ट टू ऐड अ स्लाइटली टेक्सचर और वॉल्यूम। और जो क्रिम भी हमने किया उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखा ताकि क्रिम का इफेक्ट उतना ही रहे जितना हमें बाउंस मिल सके। सॉरी इनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, कैन वी हैव द माइक इन द ऑडियंस? सॉरी क्या कह रहे हैं आप? प्री लाइट करने के बाद हम इसको 30 मिनट्स तक रखते हैं, 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद वी विल बी यूजिंग दी वॉश एंड कंडीशनर। ठीक है, शैम्पू एंड कंडीशनर किया। ठीक है, इसका जो लॉन्जेबिलिटी होता है दैट इज मिनिमम 20 वॉशेस तक रहता है अगर आप पोस्ट केयर में कलर प्रोटेक्टर शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करते हैं। ये बिल्कुल 100% ड्राई में लगाना है।
सो जब भी आप कोई भी फंकी कलर डिपॉजिट करते हैं, सो हमारे फंकी कलर की एक बहुत अच्छी खूबी भी है कि आप उन फंकी कलर को पेस्टल कलर भी बना सकते हैं। सो हमारा स्ट्रीट प्रोफेशनल का जो मास्क है, आप 50% मास्क और 50% फंकी कलर आप मिक्स करके देख सकते हैं कितनी इंटेंसिटी आपको चाहिए अगर आपको पेस्टल टोन की तरफ जाना है। सो यू कैन प्ले विद द कलर। दो अभी हमारे पास 9 कलर आ चुके हैं, ठीक है। सो तीनों प्राइमरी कलर प्रेजेंट है, येलो भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। आपके पास पूरा कलर व्हील आप बना सकते हैं, बिकॉज जो फंकी कलर हैं वो सारे के सारे इंटरमिक्सेबल हैं। सॉरी, अगर आप पेस्टल कलर कितनी इंटेंसिटी चाहिए आपको, अगर आपको बहुत लाइट पेस्टल कलर चाहिए तो आप 50% 80% मास्क मिलाएंगे और 20% पेस्टल कलर जो हमारा फंकी कलर है वो ऐड कर देंगे। थैंक यू सर। हम जब भी कलर करते हैं, ओके, तो कलर करते हैं या फिर कट करते हैं, तो हमारा कुछ भी करेंगे हम ऐसे ही कट करके छोड़ देंगे तो हमारा कट कंप्लीट हुआ। क्लाइंट का बाल काटे, गीले बाल, टाटा बाय बाय करेंगे, चलेगा? चलेगा? नहीं नहीं मैम, क्यों नहीं चलेगा? उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं है इस तरीके से और अच्छा भी नहीं लगेगा। उसमें कुछ दिखेगा नहीं? क्या नहीं दिखेगा? आपका Haircut, काम, जो भी हम काम किया हमने वो दिखेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसे। एग्जैक्टली। सो जो हम लोग ये कौन रोज सबको मालूम है ना, जो सिंपल आप लोग जो डच ब्रेड बनाते हैं, रिवर्स फ्रेंच भी बोलते हैं जिसको। सो जितने भी आप फाइन सेक्शन लेके जब करते हैं, सो उसी को ही हम लोग कॉर्न रोज बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हैं, सो हमारा जो कॉर्न रोज का इफेक्ट है इतना टाइट, और ये एक डिफरेंट एलिमेंट ऐड कर देता है, एक एक्सेसराइज की तरह काम करता है आपके हेयर स्टाइल में। मेरा कहने का मतलब था कि जब हम हेयर कट करते हैं या कलर करते हैं तो स्टाइलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, अगर आप अच्छे से स्टाइल नहीं कर पाते तो आपका कलर इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, आपका कट इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आप जितना मेहनत कट में करते हो उतना ही मेहनत स्टाइलिंग में भी करना चाहिए। ओके, जैसे हम पहले बोलते थे कि कट करते हैं तो कलर के बगैर कट अधूरा है, तो अभी स्टाइलिंग के बगैर कट, कलर, सब कुछ अधूरा है। आप कोई भी कलर कर ले, कितना भी अच्छा कलर कर ले, ठीक है। सो आपका कलर कब अच्छा लगता है? जब आप स्टाइल करते हैं। स्टाइलिंग प्ले अ बिग रोल, ठीक है। जो स्टाइलिंग होता है वो आपकी सर्विस को, आपके आर्ट वर्क को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो कितने लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने जितनी बार भी स्टाइलिंग किया, आपके बाल तो उतने ही खूबसूरत लगते हैं। सर एक समस्या हमारे आगे सबसे बड़ी, और उसका अगर आंसर मिलेगा तो बड़ा अच्छा तो लगेगा। बोलिए। सर सबसे ज्यादा का हीना कोटिंग आती है तो उसको उनको डिमांड ये रहती है कि हम भी कुछ अच्छी कर्लिंग कराएं अपने हेयर्स में, तो उसके बारे में कोई उपाय बताएं सर। सो देखो, हिना का हम लोग सोल्यूशन तभी निकाल सकते हैं, कभी भी क्लाइंट को ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। आफ्टर प्री लाइटिंग विल डिसाइड कि हम कौन सा कलर डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक कोटिंग है, हम लोग भी एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हम भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं। दो भी हमारे पास प्री लाइटनर है, उससे हमें काफी हेल्प मिलता है वो अचीव करने का, बट कितने हिना का कोटिंग कितना है डिपेंड्स करता है। तो हम कभी भी क्लाइंट को ओवर प्रॉमिस नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि प्री लाइटिंग के बाद हम लोग स्कैन टेस्ट के बाद ही आपको बता पाएंगे। बट इंडियन स्किन टोन पे कॉपर कलर बहुत सुंदर लगते हैं, तो हम किसी भी कॉपर टोन में भी, ब्राउन कॉपर में जा सकते हैं। सर जो अगर हम उसमें प्री लाइट करते हैं, अगर 2 से 3 बार लिफ्टिंग करते हैं तो उसको सेव करने के लिए क्या करें प्री लाइट को, जो वो सिरिंज ना बने, ऊपर ना जाए? डिपेंड्स कि आपके बालों की इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ कितना है। सो उसी के हिसाब से ही हम लोग सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में रिपीट कर सकते हैं। सो डिपेंड्स, आपको फर्स्ट टाइम में बाद बालों को टेस्ट करना है, चेक करना है कि बालों में उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है। सो अगर नहीं है तो प्लीज एक प्रोफेशनल ही ना कर सकता है, बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल, वी आर अ स्टाइल डॉक्टर। सो हम लोग अगर ना बोलेंगे तो वी आर नॉट अब्यूजिंग द हेयर, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए। थैंक यू सर।
आपने देखा शेरन मैम ने कितना ब्यूटीफुल विंटेज लुक क्रिएट किया है। नहीं देखा क्योंकि आई थिंक उन्होंने बैक नहीं देखा और जानबूझ के अभी मैंने पूरा बैक एक्सपोज नहीं किया आपको है। फ्रंट से तो लग रहा होगा ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। कितने लोगों ने स्ट्रीक्स के कंपटीशन में पार्ट लिया था? कोई ने भी नहीं? ओके, तो आप लोग ने हम लोग ट्रैवल नहीं किया गए। था या उन्होंने एंट्रीज भी दी थी? एंट्रीज दी थी स्ट्रीक्स के कंपटीशन में। कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? IHI में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ना? बहुत ही अच्छा लगा। यस, सो कॉम्पिटिशन्स क्या करते हैं हमें? कॉम्पिटिशन्स जीतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो कंपटीशन में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो हमारे आप को जो लेवल है उससे हम और बेहतर बना देते हैं। जीते या हारे दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, और एक बार हम जीतते हैं तो इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, लाइक यू नो सोने पे सुहागा। सो ऑलवेज हमें आई थिंक मेरे करियर में तो आई थिंक कॉम्पिटिशन्स हैव प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक रिकग्निशन मिला, सीखने को मिला, क्योंकि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उसके सामने आप नोटिस हो जाते हो। यू नो, भले आप कैसे काम कर रहे हो, आपका मूवमेंट कैसा है, वो लोग जजिंग में रहते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं। सो ऑलवेज आई फील कि ये सारी चीज़ों से जुड़ते रहना चाहिए लाइफ में, तभी हम हमारे जो लेवल से और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो हम कमर्शियल काम करते ही है क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर हमारे क्रिएटिविटी को और आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? ओके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। शाइन स्क्वायर। सो आपने देखा हमारा कॉर्नरोज कंप्लीट हो गया है। सो जैसे ही हम अपने अब बालों को खोलेंगे, इजंट इट एक ये एसेसरीज की तरह काम कर रहा है। हमने कोई भी एसेसरीज नहीं लगाया, बट आप बालों के साथ ही उसको एसेसराइज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास थोड़ा सा आप डिफरेंट लुक क्लाइंट को दे सकते हैं, जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। सो आप बालों ही, हमारे बालों में इतना कुछ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज स्काई इज द लिमिट। सो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द एलिमेंट हमने देखा जो साइड पार्टिंग से डायगोनल बैक हमने स्मॉल सेक्शन, छोटा सा सेक्शन में ही हमने कॉर्नरोज को क्रिएट किया। सर एक और क्वेश्चन है, वो और बताइए। पंजी, अगर किसी ने प्री लाइट कर रखा है और हम आपके स्ट्रिक्स वाली स्मूथनिंग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट अगर किसी ने हाईलाइट किया हुआ है तो और उनका मन है कि मुझे हेयर स्ट्रेट कराने, तो उसके लिए हम क्या करें ऐसा जो प्री लाइट है वो बच जाए, सेफ और स्ट्रेटनिंग हो जाए उनके बालों में? सो आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई भी टेक्सचर सर्विस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट दो रेंज हैं प्रोडक्ट में, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सो आप माइल्ड वाला यूज कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद जितने भी आपकी हाईलाइटेड बाल हैं उन पर्टिकुलर बालों को पिक करके पहले से आप उसमें मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। निकाल दो, निकाल दो। ओके, okay, so we are almost coming to the end of the style. जतिन, आपका कितना बाकी है? Mine is only 2 minutes left. It's almost done. यू नो, हम लोग टोंग तो सभी करते हैं, पर टोंग करने के बाद उसको कैसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं वो आप जब हमारी मॉडल्स वॉक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, टोंगिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। फ्लैट टोंगिंग होता है, ट्विस्टेड टोंगिंग होता है, जिसकी वजह से एस शेप जहाँ यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। नाउ जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने ये स्टाइल में कैसा अप्रोच किया, किस तरह से उसे किया है, आई विल जस्ट टेल यू ऑल वंस आई शो यू ऑल द बैक साइड ऑफ द स्टाइल। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बेस बनाया हुआ है उनके खुद के बालों का। ओके, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं यूज किया, उनके बाल ही काफी लंबे और थिक और वेवी थे। उससे पहले हमने ब्लो ड्राई किया, प्रेप ज्यादा जरूरी होता है। फिर बैक ऑफ द हेड से लेके
फ्रॉटिल दी टेम्पल एरिया, जितना जो सेक्शन था उसको अच्छे से कॉटन बैककोमिंग किया। अलग अलग तरह के बैककोमिंग्स होते हैं, पेपर बैककोमिंग, स्कूप बैककोमिंग, ओके, कॉटन बैककोमिंग। कॉटन बैककोमिंग क्या करता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है, ओके, तो वो वाला क्रिएट किया। वो सारे बालों को बैककोम करके उसमें एक नेट लगा दिया, सबसे बड़ा वाला, लार्जेस्ट से भी लार्जेस्ट, पूरे इतने बड़े सेक्शन को हमने नेट से कवर कर दिया, पिंस किया, अच्छे से स्प्रे करके उसको सेट कर दिया। तो हमने एक नीचे बेस बना लिया हमारी स्टाइल के लिए। और उसके बाद हमने उस पे जो ऊपर के जो सेक्शंस थे वहां पे हमने ट्विस्ट टोंगिंग किया, क्लिप किया बालों को। और जैसे आपने देखा ये पहला सेक्शन मैंने खोला तो वो एस शेप में गिर रहा था, तो उसी एस शेप को हमने फिर वो जो बेस था हमारा वहां पे हमने जाके उसको बिठा दिया। हेलो सर। So, जो इनका हमने सेक्शन लिया था, सो हम लोगों ने क्राउन से सारा पिवटिंग सेक्शन लेके वर्टिकल सेक्शन में डायगोनल टोंग किया। टोंग करने के बाद देयर इज नो, अभी तक हमने इनके बालों में कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज किया, ठीक है। सो हल्का सा अभी हम लोग बाद में फिनिशिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी आज की डेट में द वेव लुक्स रियली नाइस। सो विद द cornrows it's really complimenting and she looks really really stunning. Okay, Jatin, you're done with your styling? Yes, Very nice. because I was getting the जतिन offer सर, from my team. The time is over. Okay, I'm almost Sir. done. Yes, please. स्मूथनिंग के कितने टाइम बाद ये कलर यूज कर सकते हैं? सर कोई भी केमिकल सर्विस होती है, वी ऑलवेज पर्सनली सेज कि उसके बीच में डिपेंड्स ऑन दी हेयर क्वालिटी, उसके बीच में एक 20 दिन या 1 महीने का गैप होना जरूरी है, ठीक है। डिपेंड्स बालों की क्वालिटी कैसा है। नहीं, सो हम लोग कोई भी देखो, केमिकल ओवर केमिकल कभी भी रिकमेंड नहीं होता। सो अगर आप फंकी कलर करने हैं, आपको प्री लाइट करना होगा। अगर बाल आपके हेल्दी हैं, उसके अंदर अच्छा इलास्टिसिटी आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लाइंट को वेट करने के लिए बोलिए। जैसे बहुत क्लाइंट बोलते हैं ना, जैसे मतलब कोई रिसेप्शन में जाना होता है या कोई भी So, तो कहते हैं कि ऐसा ये चाहिए। मैंने अभी पहले भी बोला था कि हम लोग भी एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी शक्तिमान नहीं है ना कि आबड़ा के दाबड़ा वी आर डन। सो हमारी भी एक लिमिट्स हैं। सो थैंक यू। okay, and this is what she looks Oh like. wow, looking really nice, isn't it? This is a vintage look. Stand. तालियां So- काफी फीबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Yes. It's a good exercise if you clap. Just get up. So let me take it out. How's that cornrows effect on her hair? आपको पता है उत्सु के बाल काफी लंबे हैं। सर She ये would have like the hair She's is got such long hair. such long hair. सर ये कलर विदाउट वॉल्यूम होगा ना? ये हमारा स्लिक प्रोफेशनल का फंकी कलर कलेक्शन में से ग्लोरियस ग्रीन कलर है। इसके लिए हमने 8 लेवल का लिफ्टिंग किया। लिफ्टिंग करने के बाद हमने उसको वॉश किया। अच्छे से वॉश करने के बाद 100% ड्राई करने के बाद डायरेक्ट कलर एप्लीकेशन है, नो डेवलपर वीडियो। इज अ सेमी परमानेंट कलर। सो सॉरी, कितनी वॉशिंग होती है? अप टू 20 वॉशेस। ये फेड आउट होता है। Yes. ये Fade So out we होने have के all बाद our it models looks ready beautiful backstage. pastel green. अच्छा ग्रीन में Yes. रहेगा। Yes. So we Okay, are thank all you. set Yes, to set the ramp on fire. Are you all set yes. to see the variety of colors and looks? Yes. So let's start. Thank आप you. लोग देखना चाहते हैं आज हमने कितने सुंदर सुंदर कलर किए हैं, बट एक्साइटमेंट तो नहीं लग रही है। शेरन दिखाएं या नहीं? बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं देखो हमारी मॉडल्स रैंप वॉक नहीं करेगी अगर उनको तालियों की गुंजाट है। नहीं दे सुनाई लाइक देगी। दे लाइक लॉट्स ऑफ चीयर अप। We गाइस want the हम लोग models. आर्टिस्ट हैं, We हमारी want the एनर्जी डाउन नहीं होनी models. चाहिए। Woo, woo, woo. कम ऑन। Come, let's rock the show. Ladies and gentlemen, we are about to start the show. Please be seated. Enjoy the show.
Check, check, check. Ladies and gentlemen, please welcome from the Streaks team the first person, Shireen Merchant, Technical Ambassador. Hina Dalvi, Head of Technicals. Jatin Kapoor, Zonal Technical Manager, North and East. And Mamta Suvarna, Zonal Technical Manager, West and South. Let's give them a big round of applause, guys. Please we give the big round of applause for Streaks Professional. Please welcome the technical team of Streaks Professionals. Guys, give a big round of applause. Once again, please give a big round of applause for Streaks Professional, guys.